Assalamu alaikum students, today we are starting our new chapter, that is chapter number 8, which is at page number 145, and the name of this chapter is linear graphs and their application. In this chapter you will learn about Cartesian plane, conversion graphs and graphical solution of equations in two variable. Now it's 8.1, which is at page number 146. First topic is Cartesian plane and linear graphs. Cartesian कह सकते हैं और Cartesian भी पढ़ते हैं, ठीक है, and linear graphs. First 8.1.1 टॉपिक है an ordered pair of real numbers, ठीक है. अब ordered pair of real numbers सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what is an ordered pair, फिर मैं आपको बुक से पढ़ के दिखाऊंगी. Right students, so let's suppose I have two numbers x and y, right. टू नंबर्स x and y, इनका मुझे ऑर्डर्ड पेयर लेना है. तो ऑर्डर्ड पेयर याद रखिएगा, इट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ x, y एंड parentheses होती हैं, ठीक है, दे आर इनक्लोज्ड बाय parentheses. अब यहाँ पर आपने इसको x, y विद करली ब्रैकेट्स या फिर x, y विद स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लिखना है. it will be wrong. Okay, आपने हमेशा ऑर्डर्ड पेयर लिखना है x, y with these parentheses. What is x? X means this is my first element, ठीक है, and what is y? Y is my second element, right. For example मैं देख लेती हूँ. For example students, I have a number 3, 2, right. This is my ordered pair. इसमें क्या है, 3 is my first element, 2 is my second element. And one more thing students, that order of this ordered pair is very important, ठीक है. Generally मैं कह देती हूँ कि generally we have x, y is not equals to y, x. You see here my in first ordered pair my first element is x, but in my second ordered pair my first element is y. So generally they are not equal. Like आप 3, 2 को you cannot say कि it will be equal to 2, 3, right. देखिए यहाँ first element 3 है, यहाँ first element 2 है, फिर उसके बाद second element is 2 and second element is 3. So order is very important, ठीक है. फिर उसके बाद इनको लिखते किस तरह से हैं, तो यही हमारे फर्स्ट टॉपिक में इन्होंने बताया हुआ है कि व्हाट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर, उसका क्या होता है. फिर फर्स्ट थिंग इन्होंने फर्स्ट टॉपिक में ये बताई हुई है. नाउ सेकंड थिंग स्टूडेंट्स उन्होंने ये बताया हुआ है कि दैट इफ़ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, लेट्स सपोज x, y is equals to m, n. These two ordered pairs are equal. When they are equal, if first element is equals to first and second element is equals to second, right. ये आपने याद रखना है that first element is equals to first and second element is equals to second, then these two ordered pairs are equal. For example मैं देख लेती हूँ 1, 0 is equals to 1, 0, ठीक है. these are two ordered pairs and they are equal. Why? यहाँ पर देखिए जो x अब पे है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है एंड सेकंड एलिमेंट इज इक्वल्स टू सेकंड एलिमेंट. सो दिस इज़ अबाउट एन ऑर्डर्ड पेयर. आप उसको कैसे लिखते हैं, ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हेन दे आर इक्वल, राइट. इफ फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट इज इक्वल्स टू सेकंड एलिमेंट. नाउ कम टू बुक. And the same thing which I have told you is written over here. An ordered pair of real numbers x and y is a pair x, y in which elements are written in specific order, ठीक है. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. ऑर्डर्ड पेयर को कैसे लिखते हैं, x, y, ठीक है. दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा, ये ध्यान रखना है आपने. एंड एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल x, y is an ordered pair in which first element is x and second is y. Okay, ये आपको मैंने भी बता दी है. First element is x and second is y. Such that x, y is not equal to y, x. Okay, उन्होंने कहा generally they are not equal. Second, 2, 3 and 3, 2 are two different ordered pairs. अभी मैंने बता दिया है, they are different order. Although आप कहेंगे कि elements यहाँ पे भी 2 and 3 है, यहाँ पे भी 3, 2 है, but their order is different. Third is x, y is equals to m, n only and if two ordered pairs are equal. When they are equal, what is that condition? That first element is of first ordered pair is equals to first element of second ordered pair. ये देखिए
यहाँ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर है, यानी ये दोनों इक्वल होंगे एंड y इज इक्वल्स टू n। इसी तरह से सेकेंड number of first order pair is equals to second number of second order pair. So only in this case these two ordered pairs are equal. ठीक है, I have given you an example. अब 8.1.2 टॉपिक है स्टूडेंट्स खुद देख लीजिएगा, नथिंग इम्पॉर्टेंट, ये ऐसे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या है। नेक्स्ट 8.1.3 कार्टेशियन प्लेन, सब कुछ लोग कार्टेशियन भी पढ़ते हैं, ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, राइट स्टूडेंट्स, ये भी मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन हम किस तरह से लेंगे। कार्टेशियन प्लेन और कार्टेशियन, इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। ओके, इफ स्टूडेंट्स आई ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, राइट, ये मेरे पास टू परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है, एंड दीज लाइंस, व्हाट अबाउट दीज लाइंस, दीज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, आपका परपेंडिकुलरली दे मीट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट। फिर उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, इसमें क्या बताया हुआ है हमें कार्टेशियन प्लेन में, that if we have two mutually perpendicular lines, straight lines होती हैं, ठीक है, इन lines को हम क्या कहते हैं, these lines are called coordinate axes। coordinate axes हमारे पास मैं आपको explain कर दूंगी कि coordinate axes क्या होती हैं, ठीक है। फ़िलहाल आप देखें कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, and the point O where two lines meet, ठीक है, ये where two lines meet it is called origin। origin आपके पास आ जाएगा, एंड दिस प्लेन इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन और द कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन plane. If I draw two mutually perpendicular lines, then they will meet each other at point O. This O is called origin. Okay, right students? Okay, now students, this is my Cartesian or coordinate plane, okay. You have seen I have labeled them, okay. This horizontal line, which horizontal line, this horizontal line, x O x prime, this horizontal line is called x axis, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, my this line is x axis and this line y O y prime, this line is called, this vertical line is called y axis। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ ऑलवेज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज़ कॉल्ड y axis, and the point where x axis and y axis meet each other is called origin, and it is denoted by capital O, and its coordinates are 0, 0। origin के हमेशा coordinates क्या होंगे, याद रखिएगा, this is very important MCQ, the coordinates of origin are always 0, 0, ये याद रखना है आप स्टूडेंट्स ने, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स दे हैव टोल्ड यू नेक्स्ट टॉपिक दैट दिस कार्टेशियन प्लेन, दिस कोऑर्डिनेट प्लेन, दिस इज़ डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, ओके। कैसे हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 क्वाड, यू नो क्वाड मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, 4 और 4 क्वाड्रेंट्स में आपका ये डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, दिस इज़ माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ माय फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके ये क्वाड्रेंट्स हैं, और इन क्वाड्रेंट्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है बाय कैपिटल Q1, Q2, Q3 एंड Q4।
रिस्पेक्टिवली, राइट। एंड यहाँ पर साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, कोई भी आपके पास कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, उसके उन्होंने साइंस एक्सप्लेन किए हुए हैं, और वो कोऑर्डिनेट आपके पास ऑर्डर्ड पेयर, एनी ऑर्डर्ड पेयर लाई कर रहा है इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको अपने इस 8.1.4 टॉपिक में। तो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है दैट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट you have sorry, x is greater than 0, y is greater than 0. Whenever any number in any ordered pair, if its first element is greater than 0 and second element is greater than 0, so that ordered pair will be in your first quadrant. Okay, similarly, what is condition for an ordered pair to lie in second quadrant? Its condition is x is less than 0, sorry, x हमारे पास क्या होगा, yes less than 0 and y is greater than 0. यहाँ क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, x is less than 0, y is less than 0. फोर्थ में क्या होगा, x is greater than 0 and y is less than 0. अब स्टूडेंट्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू लर्न दीज कंडीशंस, ठीक है, ग्रेटर, तो इसके लिए एक मैं छोटी सी हिंट दे देती हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन यू देन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. वो हिंट क्या है स्टूडेंट्स, कि आप किसी भी रफ पे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है. यू नो दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस. तो आपको पता है दिस इज़ ऑरिजिन. इधर क्या है, यहाँ पर आपके पास सारे पॉजिटिव साइन हैं. लाइक इफ़ यू ड्रॉ अ नंबर लाइन, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज़ your 0, you know when you move towards right, your numbers are greater than 0, that is positive, and you move towards left, numbers आपके पास नेगेटिव आते हैं, ठीक है. तो वो कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखते हुए आप याद रखिएगा, 0 इज़ इन द मिडल, यहाँ पॉजिटिव आते हैं, यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस होती है. फिर सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी अबव आपके पास वाई एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, ठीक है. यहाँ आप पॉजिटिव याद रख लीजिएगा और यहाँ क्या है आपके पास डाउनवर्ड नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है. अब मैं कुछ नंबर्स ले लेती हूँ, ऑर्डर पेयर्स ले लेती हूँ. फर्स्ट ऑर्डर पेयर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर -3 एंड -1, ठीक है. और क्वेश्चन ये है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ एज वेल, इंपॉर्टेंट MCQ है. क्वेश्चन में वो ये कहता है कि आप बताएं इन विच क्वाड्रेंट दिस ऑर्डर्ड पेयर लाइज, ठीक है. तो आपने इसका क्वाड्रेंट बताना है. यू नो यू हैव 4 क्वाड्रेंट्स, 1 2 3 4. तो जो मैं टिप देने लगी हूँ वो देख लें स्टूडेंट्स. यहाँ देखें, व्हाट इज़ x, x क्या है, इट इज़ -3. -3 मीन्स x इज़ इक्वल्स टू -3 विच इज़ लेस दैन 0, नेगेटिव नंबर है, ठीक है. ये क्या है, नेगेटिव नंबर. x इज़ नेगेटिव एंड y क्या आ रहा है, y इज़ -1 विच इज़ आल्सो लेस दैन 0, और ये भी आपके पास क्या है, नेगेटिव नंबर आ रहा है. तो स्टूडेंट्स से देखें क्या कह रहा है, x भी नेगेटिव है, y इज़ आल्सो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं. तो देखिए कौन से क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव आ रहे हैं. देखिए ये आपके पास x भी नेगेटिव आ रहा है, ये y भी नेगेटिव आ रहा है. सो दिस ऑर्डर्ड पेयर विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, आई होप स्टूडेंट्स से क्लियर हुआ होगा आपको. फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को आपने डिस्कस करना है, इन विच क्वाड्रेंट इट विल लाई. तो आपने देख लिया x इज़ नेगेटिव, y इज़ नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव. तो यहाँ पर आप देख लें दोनों नेगेटिव आ रहे हैं. और अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें, चलिए इसको भी मैं यहाँ पर कर देती हूँ. लेट्स सपोज ये पॉजिटिव है, यहाँ क्या होते हैं, ऑन दिस इज़ माई नेगेटिव एक्स एक्सिस. फिर अगेन अपवर्ड जो है वो आपके पास सारे नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड जब आप नंबर्स लिखते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है. अगर हम अकॉर्डिंग टू दीज साइंस इफ़ आई एक्सप्लेन यू, तो ये देखिए यहाँ क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिस्ट ऑफ दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन,
ठीक है, दिस पोर्शन। तो यहाँ क्या आ रहा है, x भी पॉजिटिव आ रहा है और y भी पॉजिटिव आ रहा है। So they have written that x is greater than 0 and y is greater than 0. Now come to second quadrant. Second quadrant में students कौन सा एरिया आ रहा है, this portion, ये और ये two lines, ठीक है, these two lines makes your second quadrant. तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, what about y axis, y axis यहाँ पर इस quadrant में क्या आ रही है, पॉजिटिव है, और यहाँ देखें ये वाली जो लाइन है ये नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स x इज़ लेस देन 0, x इज़ नेगेटिव, y इज़ पॉजिटिव, ठीक है। जब भी किसी क्वाड्रेंट ऑर्डर्ड पेयर का x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। फिर यहाँ आ जाए इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट कंसिस्ट ऑफ दीज टू लाइन्स, राइट। यहाँ पर क्या आ रहा है, x भी नेगेटिव आ रहा है और y की भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बोथ आर नेगेटिव। तो इट मीन्स आपका लाइक दिस एग्जाम्पल ये यहाँ लाई कर रहे हैं। नाउ कम टू लास्ट क्वाड्रेंट कंसिस्ट ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो क्या होगा, जब फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ x इज़ ग्रेटर देन 0, दैट इज़ x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, तो कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अभी मैं फर्दर कुछ एग्जांपल्स लेके आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, राइट स्टूडेंट्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आई हैव नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर्स 2, -3। अब डिटर्मिन करना है इन विच क्वाड्रेंट दिस ऑर्डर्ड पेयर लाई, ओके। नाउ लुक 2, -3, ठीक है। अब व्हाट इज़ x, हेयर योर x इज़ पॉजिटिव, ठीक है, 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, एंड व्हाट इज़ y इज़ अ नेगेटिव नंबर। ओके, चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास x पॉजिटिव होना चाहिए। लुक स्टूडेंट्स, ये देखें x इज़ पॉजिटिव और y जो है आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। तो इसकी ये आपके पास एरिया आ रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ लाई करेगा, x इज़ पॉजिटिव, y इज़ लेस देन 0। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ x इज़ पॉजिटिव एंड y नेगेटिव है, सो ये लाई करेगा इन क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है। दिस ऑर्डर्ड पेयर विल लाई इन क्वाड्रेंट फोर्थ, राइट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट 2, 5, इस नंबर को भी हम देख लेते हैं यहाँ पर नीचे, इसी के मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2, 5, राइट। व्हाट अबाउट x, x क्या है आपके पास, पॉजिटिव नंबर है, एंड y क्या है, y इज़ आल्सो अ पॉजिटिव नंबर। नाउ कम टू दिस डायग्राम। अब देखिए हमारे पास x भी पॉजिटिव है, राइट, दिस इज़ x एक्सिस, x भी पॉजिटिव है, एंड y भी हमारे पास क्या आ रहा है, y भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इन सच सिचुएशन व्हेन x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ पॉजिटिव, तो वो कहाँ लाई करता है, वो ऑर्डर्ड पेयर लाई करेगा इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस ऑर्डर पेयर विल लाई इन योर फर्स्ट quadrant. Now come to its second, its last part of this example, ठीक है। it is 2, 0। अब ये देखें यहाँ पर x is positive है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2, 0। Students, in this case you see x is पॉजिटिव, x पॉजिटिव आ रहा है, बट व्हाट अबाउट y तो हमारे पास 0 आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा। तो इन सच केस व्हेन योर x इज़ पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव आ रहा है, और y की देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ y, सो ये इस किस्म का पॉइंट, दिस पॉइंट क्या होगा, दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है। इन सच सिचुएशन व्हेन यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ y, so it will lie on x axis, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स विद दीज 4 एग्जाम्पल्स थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे, ऑर्डर्ड पेयर्स को हम कैसे लोकेट करते हैं, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नाउ ये कहाँ पर बुक पे लिखा हुआ है, कम टू बुक एट पेज नंबर 146 स्टूडेंट्स। 8.1.3 कार्टेशियन प्लेन, ये आपको देख लीजिएगा। कार्टेशियन प्लेन में ऑब्वियसली क्या होता है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स
आर क्रॉस आर एक्स कॉमा वाई, हम इस प्लेन में ऑर्डर पेयर्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड द पॉइंट्स ऑफ कार्टेशियन प्लेन। ये देख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन्स आर ड्रॉन, दीज लाइन्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। The point O where the two lines meet is called origin. This plane is called coordinate plane or Cartesian plane. ठीक है, जब आप ये ड्रॉ करते हैं टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दे विल मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है, और इन कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये जो ऑरिजिन, ये सब मिलके हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। Now come to its 8.1.4 topic, identification of origin and coordinate axis. The horizontal line x o x prime is called the x-axis. Students, ये देखिए x o x prime, it is called, this horizontal line is called x-axis, and the vertical line y o y prime, y o y prime, this is called y-axis. The point O where the x-axis and y-axis meet is called the origin and it is denoted by O 0 0. ये coordinates of origin students मैंने आपको पहले भी बताया है, it is very important MCQ, इसके origin की coordinates क्या होती हैं, 0 0. We have noted that each point in the plane either lies on the axis of the coordinate plane or in any of one of the quadrants of the plane, namely x or y, लाइक इन्होंने कोऑर्डिनेट्स को नेम दे दिया है, एक्स ओ वाई कह दिया है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, वाई ओ एक्स प्राइम ओ वाई प्राइम ओ एक्स प्राइम, ठीक है। देन quadrants of the plane subdivided by the coordinates axis of the plane, they are denoted by quadrant 1, क्यों लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, हम जस्ट 1 2 3 एंड 4 लाइक आपने इसी तरह से लिखना है, नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिखना। द साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एक्स वाई आर शोन बिलो, ये इन्होंने डिफरेंट साइंस दिए हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, वाई इज़ आल्सो पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में व्हाट इज़ कंडीशन, एक्स इज़ नेगेटिव, वाई इज़ नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन होगी, x इज़ लेस देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स इसकी कंडीशन है x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0। फिर ये इसकी एग्जांपल थी 1 2 3 4, ये मैंने आपको डिफरेंट ऑर्डर पेज दिए हुए थे और उनको आपने बताना था इन विच क्वाड्रेंट दे लाइज, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, तो अभी मैं क्वेश्चन 1 करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 8.1 का, तो वहाँ आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। Okay students, now this is question number 1 of exercise 8.1, which is at page number 156. In question number 1 is determine the quadrant of coordinate plane in which the following points lie. They have given you 4 different points और वो पूछ रहे हैं ये कौन से quadrant में lie करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपसे कहा था ऑब्वियसली ये इतना क्वेश्चन में नहीं आ सकता, तो ये MCQs में आता होता है और मस्ट आता होता है। इवन इन आपके पास क्लास 10th में भी अक्सर वो MCQ में दे देते हैं कि ये दिस ऑर्डर पेयर लाई इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अब यहाँ पर हम ये करते हैं कि आप लोग एक रफ सा स्केच बना लीजिएगा छोटा सा, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको लर्न भी हो जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि दिस इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमेशा फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं करना, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए फर्स्ट में क्या होता है, ये हमारे पास पॉजिटिव साइंस, सॉरी पहले हम साइंस लोकेट कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बिल्कुल छोटा सा आपने रफ सा बना लेना है प्लेन अपना, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन। अब नाउ यू नो फर्स्ट क्वाड्रेंट की आपके पास क्या होती हैं, दिस पोर्शन कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर हम करते हैं ये वाला जो पोर्शन आ रहा है दिस पोर्शन, ये 2 लाइंस सेकेंड क्वाड्रेंट बनाती हैं, these 2 lines will make third quadrant and these 2 lines will make your fourth quadrant, okay। Now come to its first ordered pair, first ordered pair में क्या कह रहा है, -4 and 3। Look students, what is x, x is negative and y is positive, ठीक है, ये x है और ये y है हमारे पास, तो x नेगेटिव है एंड y इज़ पॉजिटिव, तो देखिए कौन सा एरिया बनता है हमारे पास, x नेगेटिव, ये x एक्सिस है, x नेगेटिव है एंड y हमारे पास क्या आ रहा है,
पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ लाई करेगा, दिस विल लाई इन योर सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। दिस पॉइंट, दिस ऑर्डर्ड पेयर विल लाई इन सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर। एक बार फिर सुन लें स्टूडेंट्स, ये देखें, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वाई। एक्स कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ लाई कर रहा है, इट इज़ नेगेटिव, फर्स्ट एलिमेंट इज़ नेगेटिव एंड सेकेंड एलिमेंट इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ फिगर में जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास मींस एक्स एक्सिस नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव आ रही है और वाई एक्सिस क्या है, ये पॉजिटिव आ रही है। सो इट विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ आपने सेकेंड लिख लिया। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है ऑर्डर पेयर क्यू, क्यू -5 एंड -2। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें क्या कहता है, यहाँ कह रहा है एक्स इज़ नेगेटिव एंड वाई इज़ आल्सो नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। तो देखें कहाँ है नेगेटिव, ये नेगेटिव आ रहा है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, ठीक है। एक्स इज़ नेगेटिव, वाई इज़ नेगेटिव। तो दीज 2 पॉइंट्स, दिस ऑर्डर्ड पेयर विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो ये कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। थर्ड ऑर्डर्ड पेयर में स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट एक्स, एक्स इज़ पॉजिटिव, वाई इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ आ जाएं, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये भी पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस है, ये भी पॉजिटिव है। तो एक्स इज़ पॉजिटिव, वाई इज़ पॉजिटिव, तो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड लास्ट ऑर्डर्ड पेयर की तरफ चलते हैं। लास्ट ऑर्डर्ड पेयर इज़, एंड लास्ट ऑर्डर्ड पेयर एक्स इज़ पॉजिटिव एंड वाई इज़ नेगेटिव। तो देखिए कहाँ एक्स पॉजिटिव आ रहा है स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ क्या आ रहा है, एक्स इज़ पॉजिटिव एंड वाई इज़ नेगेटिव, ठीक है। एक्स इज़ पॉजिटिव, वाई इज़ नेगेटिव। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास लाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ द वे यू कैन डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर, कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब इन्हीं को सामने रखते हुए स्टूडेंट्स अगर आप ये याद रखना चाहती हैं, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। तो आप लिख सकती हैं एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, वाई इज़ ग्रेटर देन 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए व्हाट अबाउट एक्स, एक्स एक्सिस क्या थी, एक्स इज़ लेस देन 0 एंड व्हाट अबाउट वाई, वाई क्या था, पॉजिटिव 0। और थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स क्या था, एक्स भी नेगेटिव थी और वाई एक्सिस भी नेगेटिव थी। सो यू कैन राइट एक्स इज़ लेस देन 0, वाई इज़ लेस देन 0। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स देखें एक्स पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव थी एंड वाई एक्सिस नेगेटिव। सो एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, वाई इज़ लेस देन 0। सो इनको भी आप लर्न करके कर सकती हैं ये। अदरवाइज़ आई हैव गिवन यू अ वेरी सिंपल टिप, जस्ट पेपर में छोटा मुन्ना सा आप इस तरह से बना लिया करें कोऑर्डिनेट, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, छोटा मुन्ना सा आप बना लीजिएगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फटाफट से आप देख लीजिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास कहाँ लाई कर रहा है, और सेकेंड आपके पास क्या है कि इन वैल्यूज़ को याद कर लें। ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर location of any ordered pair in coordinate axis with respect to according to their quadrants, कि कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 1। और इसके अलावा एक्सरसाइज में एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, वो भी मैं आपको बता दूं कि वो आपने लर्न करना है, ठीक है। Okay, now students at page number 147, 8.1.5 topic is location of the point AB in the plane corresponding to the ordered pair. Let AB be an ordered pair of R cross R. Students, मैं आपको अभी यहाँ रफ ही बुक पे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन माई नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फॉर फ्राइडे, आप स्टूडेंट्स बाय कर लीजिएगा ग्राफ नोटबुक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं भी आपको बाय यूजिंग ग्राफ पेपर एक्सप्लेन करूँगी इसको, लोकेशन को किस तरह लोकेट करते हैं। बट
अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल में जो उन्होंने बनाया हुआ है ग्राफ उसी को एक्सप्लेन करती हूँ। स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा इफ़ यू हैव एनी पॉइंट 2,3 ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर इज़ रिप्रेजेंटेड व्हेन यू राइट इन कोऑर्डिनेट प्लेन बाय एनी कैपिटल लेटर बाय पी क्यू आर एस जिस तरह से भी, ठीक है। वन थिंग। सेकेंड, अब देखिए इन्होंने कहा है एक्स क्या है, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, वो हमारे पास वैल्यू आ रही है एक्स की 2 एंड वाई इन्होंने क्या दिया हुआ है 3। सो टू लोकेट दिस पॉइंट इन द प्लेन, तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट ले लिया, ठीक है, जहाँ उसकी वैल्यू गिवन होगी। फिर मूव करते करते अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस पे जहाँ 3 आ रहा होता है यहाँ आपने स्टॉप कर देना है। सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, गिवन पॉइंट इन द प्लेन। वो खैर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इन माय नेक्स्ट वीडियो बाय यूजिंग ग्राफ पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएँ, जो मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए आपको ये बताया है, एक्सप्लेन किया है। पेज नंबर 148 पे स्टूडेंट्स से कुछ इन्होंने दी हुई हैं चीज़ें, आप पढ़ लीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट, और क्लास 10th के एमसीक्यू में भी आई हैव सीन इन पेपर ऑफ क्लास 10th, वो ये है, प्लीज़ अंडरलाइन दिस थिंग। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज़ कॉल्ड एब्सिसिया ऑफ द पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज़ कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स, क्या इन्होंने कहा हुआ है कि हमने तो ये कहा था कि हमारे पास पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, कोई भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, मैंने आपको कहा था दिस इज़ माय फर्स्ट एलिमेंट, मैं इसे फर्स्ट एलिमेंट कहूँगी, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, और इसको मैं एब्सिसिया, ठीक है, एब्सिसा हम ये कहेंगे फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट्स को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं और एब्सिसा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी तरह से जो हमारा सेकंड एलिमेंट है और y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका एमसीक्यू क्या कैसे आता है, इन x, y, कोई भी एमसीक्यू दिया हुआ है, ठीक है, x इज़ कॉल्ड, ए ऑप्शन में दे दूँगी, ए लेट्स सपोज यहाँ पर कोई भी मैं कह देती हूँ, ए इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर कह देती हूँ, ठीक है। बी ऑप्शन में मैं दे देती हूँ ऑर्डिनेट, सी ऑप्शन में मैं दे देती हूँ एब्सिसा, एंड डी ऑप्शन में दे देती हूँ नन ऑफ दिस। अब स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू है, इन x, y x इज़ कॉल्ड, तो आपने याद रखना है x को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट नहीं कहते, ये तो ऑर्डर्ड पेयर है। सी, x को मैं क्या कहूँगी, एब्सिसा, ठीक है। इस तरह से आपके पास एमसीक्यू आता है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ y कोऑर्डिनेट की, या इंस्टेड ऑफ x y भी दे सकते हैं, इन x, y इज़ कॉल्ड, तो ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डिनेट, एब्सिसिया, नन ऑफ दीज, तो आपने याद रखना है y को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, राइट, और दोनों मिलके कोऑर्डिनेट बना देते हैं। सो स्टूडेंट्स, यही चीज़ मैं लिखी हुई है, मैं फिर से पढ़ रही हूँ। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x इज़ कॉल्ड, पॉइंट इज़ कॉल्ड एब्सिसा ऑफ द पॉइंट p of x y एंड द y कोऑर्डिनेट इज़ कॉल्ड इट्स ऑर्डिनेट, ठीक है, ये याद रखिएगा। Each point P of the plane can be identified by the coordinates of the pair x, y and is represented by P x y, ठीक है। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, जब आप उसको प्लॉट करेंगे ऑन ग्राफ पेपर, लाइक ये देखें इस एग्जांपल में, तो आपने उसको कुछ नेम देना है, P, Q, R, S, A, B, किसी भी नेम से आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल, ठीक है, लेटर से। फिर ये कहता है वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट्स में प्लेन हैव y कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू 0, दे लाई ऑन द x एक्सिस, ठीक है।
देखिए ये भी मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास इफ़ योर वाई कोऑर्डिनेट इज़ ज़ीरो, आपके पास वाई की कोई एंट्री ही नहीं है, तो क्या होगा, वो पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, वो पॉइंट्स लाई करेंगे ऑन एक्स एक्सिस लाइक दिस। देखिए ये पॉइंट गिवन है, इसमें ओनली एक्स की वैल्यू है, यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ वाई, वाई ज़ीरो है, तो इट मीन्स दिस पॉइंट विल लाइज ऑन योर एक्स एक्सिस, राइट। एंड थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑल द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट x is equals to 0 if they lie on the y axis, like this is another point। तो यहाँ गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 0 आ रही है, y कोऑर्डिनेट इज़ 3, सो दिस पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस। देखिए इसमें y 0 है, सिर्फ x गिवन है तो x एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ x 0 है, ओनली y आपके पास वैल्यू है, ऑर्डिनेट की वैल्यू है, सो दिस पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस। So this is about our today's topic that is ordered pair। ठीक है, ordered pair के बारे में जितना कुछ था स्टूडेंट्स इस बुक में भी, उसके अलावा भी जो है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा स्टूडेंट्स, एंड do buy ग्राफ नोटबुक सो दैट हम 8.1 के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं, 8.2 एंड 8.3, ये तीनों एक्सरसाइजेस आपकी ग्राफ नोटबुक पे होंगी। ओके, सो टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।